ओके ओए, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है. अरे. I took a hot but crazy girl out sailing. She bought a bottle of rum with her, and when she started acting drunk, I was shocked to see she had drunken almost the whole thing. एक रम का बॉटल पूरा खत्म कर दिया. This was a little sunfish that barely fit two sober people, so I was constantly grabbing her and pulling her back from the edge while sailing. Oh my god, what pet की story पढ़ने जा रही हूँ क्या? I decided to cut my losses and head back to land, but it takes forever because she is rolling around insensibly, and the place I am at closed the gates at dusk. Okay. So I get back to the land. I need to get her off the boat, but she is trying to pass out and get all angry when I try to talk to her or simply move her. वो मतलब बंदी बहुत ज़्यादा, देखो चल क्या रहा है यहाँ पे. चल ये रहा है कि बंदी सेलिंग पे आई थी एक लड़के के साथ, ठीक है ना. प्रियांशी रुको, चुप हो जाओ, तुम मेरे बीच में बोल देती हो. ये बंदी मुझे बीच में बोल देती है. फिर बताइयो, वो प्रियांशी दीदी नहीं है, प्रियांश है, लड़का है वो, ठीक है. हाँ, सो यहाँ चल ये रहा है कि वो बंदी ने पूरी रम की बोतल पी ली है. अब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है, ठीक है ना. अंधेरा हो चुका है. बंदा जो है वो उसको वापस ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर लेकिन बंदी जो है वो तो बोट से उतर ही नहीं रही है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है. सो आई गेट बैक टू द लैंड. आई नीड टू गेट हर ऑफ द बोट, बट शी इज़ ट्राइंग टू पास आउट एंड गेट ऑल एंग्री व्हेन आई ट्राई टू टेक हर, मूव हर. आई ट्राई to gently pick her up bit. She is both limp and struggling. Okay, all this is made much worse by the fact that there is a 30 something woman with her toddler right nearby. Wow. Who is watching me try to manhandle a clearly drunk woman who is telling me to fuck up. Oh my god. Okay, got it. मतलब लोगों को लग रहा है कि ये जानबूझ के वो जो ड्रंक बंदी है उसको खींच रहा है और उसको ले जा रहा है विदाउट इवन नोइंग कि एक्चुअल में वो तो उसकी दोस्त है, और लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसको तो ज़बरदस्ती कर रहा है वो. इट वॉज बैड. आई कुड टेल शी वॉज डिबेटिंग वॉट टू डू. As I am reassessing the situation, I realize that I need to walk several hundred yards to get back to my car. And if moving this belligerent woman, भाई क्या इंग्लिश है ये, woman 10 feet to shore was a near impossible struggle. There was no way I would make it in time. Exactly. नहीं कर सकते. I was thinking about how dire the situation was when my eyes landed on a wheelchair someone had left at beach. Bingo. Oh, अब वो अपने फ्लैट स्टोरी क्यों लग रही मुझे? व्हील चेयर पे लग के ले जाएगा. I ran and get it, bring it into the water next to the boat, plop her in. A woman with the toddler still watching. Okay, wheel her up to my car, still rolling around and forcing me to pull her back into the chair. Oh, I load her up in my car, return the wheelchair to where I found it, and tried to leave only to find the gates closed. I was closed in. No cell phone on me, no friends nearby. I was like, holy shit! What am I gonna do? What am I doing in my car? What am I doing with her? What? Then, much like Neo in the Matrix, I said no. I'm not doing that. So I scrounged around in my car, found 2 pairs of pliers, and proceeded to take apart the gate by hinge. 4 bolts, and I had that fucker swinging open to sweet freedom. I was so happy when I left, but she passed out and nearly knew any of it. She somehow wanted another date, but I declined. Oh my god. Actually, what the heck? ये क्या हुआ? मुझे लगा था कि अब अगर वो दोनों कार में बंद हैं तो कुछ तो होगा, पर ये कुछ नहीं हुआ. वो बंदा इतना चाहता था उस सिचुएशन से निकलने के लिए तो उसने गेट ही तोड़ दिया, और ही इज़ लाइक वेरी हैप्पी क्योंकि उसे फाइनली फ्रीडम मिल गया. सही किया. तो जापड़ लगाने चाहिए थे अपने सेंस में. अरे भाई इतनी मेहनत कर रहे हो बार-बार. मैं इतनी मेहनत बैठी तो मैं भाग जाती वहाँ से. इतनी कौन मेहनत करे.
आजा। अबे यार भाई सही बोलता, नहीं तो मार देती, ठीक है ना। अब इसके चैट्स देखो, इसके कमेंट्स पढ़ते। दैट वाज अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू, आई एम सॉरी यू वेंट थ्रू दैट। इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम, एग्जैक्टली, दैट्स अ लेजेंडरी स्टोरी मैन। आई हैड अ पैनिक अटैक इन हिज कार, poor man was in total shock and I was just sitting there ashamed. Is this the girl? यही है क्या बंदी वो? नहीं शायद वो नहीं है, वो नहीं होगी। कर देते हैं ना। She insisted I drunk when I don't usually, then threw the condom across the room and claimed to be on birth control. हम फोन चला रहे अपना। Next morning claimed to not be on birth control and that I used her and she told me she wasn't on the pill. Storied me to borrow money. 8 days after taking Plan B, she claimed to be pregnant. Described symptoms of 10 plus weeks like morning sickness, attempted to use fake pregnancy to extort me. I called her out on her bullshit. She attempted to extort me, claiming essay. Oh, I ignored her until she made the mistake of asking for $2,500, which in my state raises extortion to a felony. After that, I called her demanding to know who every phone number I was harassed by belonged to. She begged me not to go to the cops and quickly exited my life. So many red flags ignored. One more day. What did he say? ये क्या चल रहा है? तनु को बाहर निकालो ऐसे। फोन चला रही है, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। 1 मिनट, ये क्या था? ये एक्चुअल में, ये तुम देख सकते हो कि ये है रियल लाइफ बेस्ड, ठीक है ना, कि बंदे के साथ एक्चुअल में बंदी को प्लान भी लेना था, लेकिन उसने बंदे के साथ प्लान भी लेके उसके सारे पैसे भी ले लिए, उसको बहुत ज़्यादा डराया भी, ठीक है। गाइज, आई हैव अ स्टोरी, समथिंग हैपन टुडे। चलो मैं बताती हूँ तुमको। हाँ, अब सुन ले, तेरे से बड़े अच्छे लोग वो हैं, इसलिए मैं उनको बताती हूँ, वो मेरे से क्लोज है, तुम थोड़ा ना क्लोज हो। हाँ, अडॉप्टेड। सुनाओ। देखो, तो आज हुआ क्या, आज हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ठीक है ना। मैं एग्ज़ाम से बाहर निकली और उसके बाद मेरे पीछे मेरी दोस्त आरती भी आ गई। हम दोनों ही का नाम आरती है, ठीक है, बाय द वे। मनु भी है। हाँ, उसका नाम मनु भी है, सेम नेम है, हमारे निक नेम और रियल नेम सेम ही है। सो व्हाट हैपेंड कि वो भी आ गई। अभी हम दोनों कैंटीन में गए, ठीक है ना, एंड उसने बोला कि वो आज हमें खिलाएगी, वो मेरे को पार्टी देगी, ठीक है ना। तो हम छोले भटूरे खा रहे थे, तब तक हमारे एक और दोस्त का कॉल आ जाता है कि तुम लोग कहाँ पे हो, एंड वी वर लाइक कि तुझे बाकी ग्रुप को नहीं बताना है कि हम कहाँ हैं। फिर हम तीनों कैंटीन में गए, हमने छोले भटूरे खाए, ठीक है ना, फिर हमने कोक लिया, उसके बाद उसने लस्सी भी लिया, उसके बाद हमने वो सब कुछ खाया विदाउट टेलिंग आवर होल ग्रुप कि हम कहाँ हैं। उसके बाद वी डिसाइडेड लेट्स जस्ट गो और हम मोमो खा के आते हैं, ठीक है ना। और हम उन लोगों को बिना बताए कॉलेज से बाहर जाते हैं, मोमो नहीं मिल रहे थे तो हमें चाउमीन मिला था, ठीक है ना। तो हमने चाउमीन खाया और उसके बाद इट्स लाइक कि हम पूरा प्लेट खा नहीं पा रहे थे, ठीक है। हम 3 लोग थे, पेट भर चुका था, हम नहीं खा पा रहे थे। फिर मेरे दिमाग में एक बड़ा प्लान आया कि व्हाट इफ हम अच्छे होके वो जो प्लेट में बचा हुआ है उसको पैक कराए और जो हमारे बाकी लोग हैं दोस्त उनको बोले कि हम उनके लिए लेके आए हैं ये, ठीक है ना, जबकि वो हम खा रहे थे, हमसे खाया नहीं गया। तो द सेम थिंग वी डिड। हमने भैया को बोला भैया ये प्लेट वाला पैक कर दो, ठीक है। भैया ने पैक करके दे दिया हमें पन्नी में, ठीक है ना, अच्छे से। फिर हमने अपने दोस्तों को कॉल किया, गाइज मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत अच्छा है। और फिर मैं गई और उनको दे दिया और उनको भनक भी नहीं हुई कि हम तीनों जो उतनी देर से घूम रहे थे, कॉलेज से बाहर थे, यही सब मस्ती काट रहे थे। स्मार्ट वर्क दोस्तों में हो रहा है, दोस्तों को पता भी नहीं लगा, ठीक है ना। कितना अच्छा किया, खाना बर्बाद भी नहीं हुआ और दूसरे लोग को भी मिल गया, दोस्त भी खुश हो गए। एक तो ऐसी दीदी है, मेरे बारे में नहीं सोचा, जबकि मुझे अगर चिल्ड्रंस डे पे इतनी सी चॉकलेट भी मिलती है वो भी लेके आती हूँ आपके लिए। इतनी खराब। तनु के लिए ले आते यार। तुम ये बताओ, अगर मैं हैंड में हूँ, मेरे सामने दोस्त हैं, तो मैं इनको दे दूंगी ना, इसलिए। आज तनु ने तो आज इडली खाई है, सुबह से इडली खा के रह गई है।